Good afternoon, student. Good afternoon, sir. Okay. In last lecture, we have discussed the curve fitting for non-linear expression. That means least parabola, है ना? Least square. So you can see in last lecture we have discussed the fitting a parabola y square is equal to a plus bx plus cx square and normal equations for the fitting a parabola. In last lecture we have already discussed that and we done two examples for that, है ना? क्लियर? इसके लिए दो एग्जांपल किए थे कि नहीं? वो वेरीफाई किया आपको मैंने किया, बोला था ना कि इसको फाइंड करके वेरीफाई करना. ये वेरीफाई हो गया? वो तो हम कहाँ करते हैं सर, आप बोल दिए तो हो गया, है ना? हाँ, पता है मुझे. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिटिंग द एक्सपोनेंशियल कर्व. हाउ टू फिट डेटा विद द एक्सपोनेंशियल कर्व. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस फॉर द कर्व फिटिंग. नंबर वन यू कैन सी, यस, नॉन लीनियर तो खत्म हो गया हमारा. And next is the, yes, fitting curve of the form y is equal to a e raised to bx, that is the exponential form. And first one, ये second one था, first one ये रहा, yes, a b raised to x means b, yes, b कभी क्या हो जाएगा, एक ये जनरल है y is equal to a b raised to x, सेकंड है y is equal to a e raised to x, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो ऐसी है कि x y raised to gamma is equal to c. So we will discuss these three types of example. y is equal to a b raised to x means b की जगह पे आपको कुछ भी दे तो क्या करना है, y is equal to a b raised to a e raised to x, and third one is x into y raised to gamma is equal to c. So there are three different possibilities for the curve fitting of the exponential form. Okay, so we will discuss one by one. So today we discuss first one and second one, and third one will be discussed in next class. So how to fit first one? So you can see everybody, I go to the board. So exponential, so I am considering y is equal to a b raised to x. Suppose this is my फिटिंग कर्व. ओके, मुझे इसको फिट करना है, तो अब x को नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑपरेट करेंगे. सो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a इंटू बी रेज टू x. अब व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग a इंटू बी, log of a plus log of b raised to x. Now if you again use the properties of log, then you will get log of y is equal to log of a plus x into log of b, और सभी के बेस में हमने e को रखा है. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको पता चल गया ऑनलाइन में? इज इट ओके? Yes, sir. What about others? Is it okay everybody? Yes, sir. ओके, पलक ने बोल दिया यस सर. पार्थिव, सचिन, रमेश, कार्तिक, ओके, दीपक ने भी बोल दिया, निश्चल, विजय, यस, पार्थिव ने भी यस सर बोला. ओके, सो this is our fitting of the curve, and now we are applying the logarithm both side, and if you use the properties of the logarithm, then we will get log of y is equal to log of a plus x log b. Okay, now I consider that this is my y, capital Y, this is my capital A plus x, and this is my capital B. So this is nothing but our form capital X. Yes, ये capital X है ना.
सो मैंने क्या कंसीडर किया यहाँ पे, कैपिटल Y इज इक्वल टू लॉग वाई, कैपिटल A इज इक्वल टू लॉग ए, small x is equal to capital X, and capital B is equal to log B. So I am considering these four new parameters, okay, new variables, new constant. So यहाँ पे हमारा कर्व हो गया, देखो y is equal to a plus xb. So this is the case of the straight line, है ना, स्ट्रेट लाइन का केस आ गया वापिस. तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? सो अगेन वी कैन यूज दिस समेशन. सो फॉर नॉर्मल इक्वेशन, सो यू कैन सी नॉर्मल इक्वेशंस. इसके नॉर्मल इक्वेशन कौन कौन से होंगे? सो समेशन ऑफ वाई आई, कैपिटल वाई आई इज इक्वल टू ए मीन समेशन ऑफ ए, चलो समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ एक्स बी एंड आई इक्वल टू 1 to n. यहाँ पर भी समेशन आई इक्वल टू 1 to n एंड यहाँ पर भी समेशन आई इक्वल टू 1 to n. सो यहाँ पे मुझे मिला आई इक्वल टू 1 to n, कैपिटल वाई आई इज इक्वल टू ए तो बाहर चला जाएगा. नाउ वी हैव दिस समेशन ऑफ 1, है ना, यस वो n हो जाएगा, वेरी गुड, प्लस b बाहर चला जाएगा, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n x. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सो समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू a इंटू दिस इज योर स्मॉल n, है ना, क्योंकि 1 + 1 + 1 n टाइम्स, सो स्मॉल n प्लस b into summation of I equal to 1 to n capital X. So this is your first normal equation. Okay. अब सेकंड के लिए मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय x, है ना, तो मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तो एंड समेशन I equal to 1 to n xi into yi is equal to a. यहाँ पे आ जाएगा समेशन I equal to 1 to n xi प्लस b समेशन i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे xi है ना, xi इंटू xi, सो xi स्क्वायर. तो दिस इज माय नॉर्मल इक्वेशन नंबर 2 फॉर दिस कर्व y इज इक्वल टू a प्लस xb. सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टू हियर, एनीबॉडी, एनी डाउट? नो सर. ऊपर वाला, ये वाला, ओके. सो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज टू एक्स, गिवन कर्व है, फिट हमको इसमें करना है. तो मैंने क्या किया, दोनों साइड पे लॉगरिथम अप्लाई किया. सो दोनों साइड पे लॉगरिथम करेंगे कि यहाँ पे log y हो जाएगा, यहाँ पे log a इंटू बी रेज टू एक्स होगा. अब log x इंटू वाई क्या होता है? log x प्लस log y. सो log a प्लस log b रेज टू एक्स. अब लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है कि पावर को आगे ले सकते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे थर्ड में यूज किया. सो x log e बेस e है एंड b आ जाएगा. डन. अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको फाइंड करने से थोड़ा सिंपल वे में चला गया. इसको मैंने कैपिटल Y बोल दिया, इसको मैंने कैपिटल A बोल दिया और इसको मैंने कैपिटल B बोल दिया और स्मॉल x था उसको डायरेक्ट कैपिटल X. ओके, तो ये मैंने एज्यूम किया कि लेट करके मैंने इतना ले लिया. डन. अब इसको मुझे फिट करना मीन्स स्ट्रेट लाइन अगेन. तो स्ट्रेट लाइन के तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं. तो यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन उसके लिए कैसे निकालते थे वो मैंने फिर से यहाँ रिपीट किया. समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, y का yi हो जाएगा, यहाँ पे समेशन ऑफ a हो जाएगा, समेशन ऑफ x इंटू बी आ जाएगा. अब समेशन ऑफ yi एज इट इज, यहाँ पे a बाहर चला जाएगा, समेशन ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस b बाहर चला जाएगा, समेशन ऑफ xi हो जाएगा, यहाँ पर भी xi आएगा. ओके. अब नेक्स्ट में क्या होगा, समेशन ऑफ yi a. अब यहाँ पे 1 का समेशन मीन्स 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स, सो यहाँ पे n आ जाएगा, प्लस b समेशन i इक्वल टू 1 to n xi एज इट इज. दैट इज माय फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन फॉर द y इज इक्वल टू a प्लस xb. ओके. सेकंड के लिए क्या करूंगा, जैसे करते थे ऐसे xi से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन को, है ना, तो xi से मल्टीप्लाई किया. सो समेशन i इक्वल टू 1 to n xi इंटू yi प्लस a, यहाँ पर 1 की जगह पे xi हो जाएगा, प्लस b यहाँ पे xi इंटू xi स्क्वायर हो जाएगा. सो 1 and 2 हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशन मिलेंगे, बिकॉज हियर x तक ही जाना है इसलिए. अगर स्क्वायर वाला होता तो अभी हम एक दूसरे xi से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन लेके आते हैं. ओके, लेकिन यहाँ पे x तक जाना है. नाउ इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन ऑनलाइन में, ऑफलाइन में? नो? श्योर?
ऑफलाइन ऑनलाइन में नो सर। निश्चल, कार्तिक, बोलो, रिप्लाई तो करो सब लोग, मुझे हर एक का नाम नहीं बोलना है। यस सर। हाँ, एनी डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है ना। अब इसके लिए एग्जांपल करते हैं। देखो, फाइंड द लो फॉर द फॉर्म y is equal to a b raised to x to the following data। क्या बोला है? फाइंड द लो ऑफ द फॉर्म y is equal to a b raised to x to the following data, to the following data। अब टू दी फॉलोइंग डेटा में आपको x दिया होगा एंड y दिया होगा, तो मैं पहले x लिख दूंगा फिर y। सो x मेरे पास है 1 और y उसके लिए 1, 2 1.2, फिर 3 1.8, फिर 4 2.5, फिर 5 3.6, then 6 4.7, then 7 6.6 and last में 8 9.1। ओके, सो दिस इज माय डेटा। ओके, नाउ सॉल्यूशन। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो अगेन जो आगे प्रोसेस किया ना पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? हियर y is equal to a b raised to x, taking logarithm both side, so log of y is equal to log of a b raised to x implies log of y is equal to log of a plus log of b raised to x, and that implies log of y is equal to log of a plus x into log b, है ना। एंड यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेट log of y is equal to capital Y, log of a is equal to capital A, small x is equal to capital X, and log of b is equal to capital B। Okay, so we have the curve capital Y is equal to a plus x into b। तो यहाँ तक कोई डाउट? अब वही कॉपी पेस्ट किया ना मैंने, एवरीबॉडी ओके ऑनलाइन में? यस सर। नाउ द नॉर्मल इक्वेशंस आर, तो इसके नॉर्मल इक्वेशंस अभी हमने डिराइव किए थे ऐसे, समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू ए इंटू स्मॉल एन प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। ओके, यहाँ पे कैपिटल एक्स आएगा। यस, दिस इज द कैपिटल एक्स। यस, एक्स। ओके, so I equal to 1 to n, I equal to 1 to n। Now next, and second expression I equal to 1 to n xi into yi is equal to यहाँ पे a into summation I equal to 1 to n xi plus b into summation I equal to 1 to n xi square। Okay, say this is your equation number 1 and this is your equation number 2। So any problem up to here? Anybody? किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना? ओके, चल अब यहाँ पे फिर हम 4 वैल्यूज फाइंड करेंगे टेबल के हिसाब से। मुझे एक तो ये चाहिए, है ना, समेशन ऑफ वाई आई चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई चाहिए, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू वाई आई चाहिए एंड एक्स आई स्क्वायर चाहिए। ओके, इतना मुझे टेबल से फाइंड करके लेके आना है। तो क्या बनाएंगे टेबल? यहाँ पे पहले आएगा x, फिर आएगा y, फिर
पहले स्मॉल एक्स वाई आएगा, यस स्मॉल एक्स वाई. सो दिस इज योर स्मॉल एक्स, दिस इज योर स्मॉल वाई, देन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई. उसके बाद क्या चाहिए, एक्स आई आ गया, वाई आई आ गया, एक्स आई इंटू वाई आई तो लास्ट में रखेंगे, एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू वाई. ओके, इतना मुझे चाहिए. डन, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. चलो स्मॉल एक्स कितना दिया था मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, आप स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ. देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाना है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. उसके लिए y था, फर्स्ट के लिए 1.2, सेकंड के लिए 1 के लिए 1 है, फिर 1.2 है. यस 1 1.2 1.8 2.5, फिर है 3.6 4.7 6.6 एंड 9.1. इतना तो कर ही सकते हो सब लोग, है ना. अब यहाँ पे देखो, जो एजम्पशन है उसको कंसंट्रेट करना है. मैंने कैपिटल एक्स किसको बोला है, स्मॉल एक्स को, तो वो तो कॉपी पेस्ट ही हुआ ना. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मेरा, क्योंकि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स है. अब y मेरा क्या है, y log ऑफ y है ना. तो अब मुझे क्या करना है, log ऑफ y से मुझे कैपिटल Y फाइंड करना है. तो फर्स्ट वैल्यू आपको ऐसे फाइंड करना है. देखो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आएगा log ऑफ 1 आएगा. log ऑफ 1 कितना होगा, 0, तो फर्स्ट 0 हो गया. ओके, फिर log ऑफ 1.2, चलो कैलसी से फाइंड करो. log ऑफ 1.2 कितना हो रहा है, 0.0. आपने बेस 10 लिया है, देखो तो बेस ई लेके करना है ना. चेक करो, चलो 0.1823 आ रहा है. देखो तो इसमें तो 1823 लिखा हुआ है. हाँ, ln का फाइंड करना है. तो 0 पॉइंट क्या है, 1.2 है ना. तो 1.2 ln आए ना, 0.1823. ऑनलाइन में मिल रहा है या फिर सो गए, ऑनलाइन में फाइंड कर रहे हो आप. log ऑफ 1.2 किया सबने, ln करना है, ln 1.2. ओके, फिर यहाँ पे ln 1.8 कितना हुआ, 0.5878. ln 2.5 0.9163. ln 3.6 2809. yes. ln 4.7 76. ln 6.6 71. ln 9.1 यस 2.2083. अब एक्स स्क्वायर करना है. चलो एक्स स्क्वायर करो. तो एक्स स्क्वायर मीन्स क्या करना है, जो एक्स है उसका स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64. ओके, अब x इंटू वाई. तो x इंटू वाई मीन्स ये दोनों का प्रोडक्ट. सो ये 0 हो गया फर्स्ट. फिर 2 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 0.1823 करो. तो
46। ओके, फिर नेक्स्ट रहेगा 3 इंटू 0.5878, सो 1.7634 मिलेगा। फिर नेक्स्ट x इंटू वाई करेंगे तो 3.652, वेरीफाई करते जाओ, 6.4045, 9.2856, 13.2097 and last is 17.6664। ओके, डन, मिल गया, चेक करो। चलो ऑनलाइन में, इज इट ओके अप टू हियर एवरीबॉडी? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज माय समेशन, है ना? मुझे समेशन फाइंड करना है। किस किस का समेशन फाइंड करना है? तो समेशन ऑफ x पहला, xi, फिर समेशन ऑफ yi, फिर समेशन ऑफ xi स्क्वायर एंड लास्ट है समेशन ऑफ xi इंटू y। चलो ये 4 का एडिशन फाइंड करो। चलो कॉलम का एडिशन करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, कितना आएगा? 36। वेरी गुड, सो दिस इज योर 36। अब इसका एडिशन करो। चलो वेरी गुड, 8.6103 xi स्क्वायर, 204, then xi yi, ऑनलाइन में कर रहे हो या फिर ऐसे ही बैठे हुए हो? सर मोबाइल में तो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कहाँ से मोबाइल यूज करेंगे, नहीं है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। 52.3594 आ गया एक्स वाई। किसी ने ट्राई किया या फिर सीधा लिख दिया? चलो अब ये सभी वैल्यू हम किस में रखेंगे? 1 by 1, 1 and 2 में। सो फ्रॉम, देखो यहाँ पे 1 and 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, समेशन ऑफ yi, तो yi ये मेरा 8.6103 इक्वल टू a। n कितना है? n हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 8। सो a इंटू 8 प्लस b समेशन ऑफ xi, xi कितना है? 36। सो 36 because n is equal to 8 number of observation। सेकंड एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो समेशन ऑफ xi yi, सो ये है 52.3594 इक्वल टू a इंटू xi, xi मीन्स 36 प्लस b इंटू xi स्क्वायर दैट मीन्स 204। ओके, अब ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। देयरफॉर 8.6103 इक्वल टू 8a प्लस 36b, देन हियर 52.3594 इक्वल टू 36a प्लस 204b। ओके, say this is your expression number 3 and expression number 4। now solve this 3 and 4। चलो 3 and 4 को सॉल्व कर दो। and tell me the capital A and capital B। so after solving equations 3 and 4, what should be my A equal to and B equal to? चलो A and B की वैल्यू बताओ मुझे। A डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, है ना? चलो बताओ ऑनलाइन वाले, कुछ तो बताओ।
ऑफलाइन वाले तो बेचारे कर रहे हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन है मेरे 2, नंबर ऑफ अननोन है मेरे 2। सबमिट। चलो फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, 8 है ना, 8a प्लस 36b इज इक्वल टू कितना है, 8.6103। देन यहाँ पे 36a प्लस 2 इक्वल टू 52.3594। ओके चलो सबमिट करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। एरर, ओ डेसिमल नहीं ले रहा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं ले रहा है तो ये तो काम का नहीं है हमारा। चलो चलो भाग। चलो ट्राई करो क्या आ रहा है, ऐसे थोड़ी करोगे आप, बोलो किसका आंसर आया। यस चलो यस यस वेरी गुड। पॉइंट बी का आया 0.3241 है ना। ओके और ए का -0.3823 आएगा। ये तो इंटीजर के लिए ही लेता है। नहीं ले रहा है ये। चलो मिल रहा है। ये मिला सबको या करवाने की जरूरत है, बोलो जल्दी। आ रहा है ना ये, a इज इक्वल टू -0.3823 एंड b इज इक्वल टू 0.3241। ऑनलाइन में इज देयर एनी डाउट अप टू हियर, कर पाओगे ना स्टूडेंट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आर यू देयर? यस सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके अब ए मेरा मिला ये एंड बी मेरा मिला ये। अब ए एंड बी से मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल एंड स्मॉल बी फाइंड करना पड़ेगा ना। तो कैपिटल ए हमने किसको लिया था,
कैपिटल ए लॉग ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, सो यहाँ पे इम्प्लाइज कैपिटल दैट मीन्स लॉग ए इज इक्वल टू -0.3823, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e रेस टू -0.3823। चलो ये कैलकुलेट करके बताओ। एंड b मैंने लिया था, एज्यूम किया था log b, ओके, सो यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा। सो log b इज इक्वल टू 0.3241, सो b इज इक्वल टू e रेस टू 0.3241। चलो e रेस टू -0.3823 बताओ। जीरो 0.6823 एंड बी के लिए ऑनलाइन में अगर आंसर आता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करो नहीं तो नहीं पता चलेगा। वन 1.3827, ओके। सो अब देखो मेरा कर्व कौन सा था, y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स था ना, स्टार्टिंग हमने कहां से किया था, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू बाकी बची रखने के लिए, a एंड b की। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू a मीन्स हुआ मेरा 0.6823 एंड b मेरा हुआ 1.3827 रेस टू x, विच इज रिक्वायर्ड कर्व ऑफ गिवन डेटा, ओके, क्लियर। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स में, तो यहाँ पे सिर्फ कितना नया आया, चेंज कहाँ पे आया, ये जो 4 एजम्पशन लिए उसमें, अंडरस्टैंड। ये एजम्पशन नहीं लेते तो इसको हम अच्छी तरीके से फिट नहीं कर सकते थे, ओके। और यहाँ पे a इंटू बी सिंपल है ना, इसे यस, ये a b रेस टू x ऐसे, ओके। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल, एनीबॉडी ऑनलाइन No, में, No, ओके। sir. रमजान को नहीं है, देन व्हाट अबाउट अदर्स, प्लीज। पलक, ऋषभ, कार्तिक, सचिन, देव, पार्थिव, दीपक, गुंजन, निश्चल, रमेश, विजय, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये मेरा हुआ कर्व फिटिंग ऑफ y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स। अब कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसे भी जरूरत पड़ेगी कि y इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स, मीन्स अब b की जगह पे क्या हो गया, ई रेस टू बी एक्स हो गया। देखो आगे वाला देखो, और दोनों में कंफ्यूजन मत करना। आगे हमने किसको फिट किया, y इज इक्वल टू ए बी रेस टू एक्स। अब हम किसको फिट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स, मीन्स ई रेस टू के ऊपर पावर में बी एक्स, ओके। तो इसको फिट करना है। तो यहाँ फिर से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स को मुझे फिट करना है। तो अब उसके लिए फिर से क्या करूंगा मैं, दोनों साइड पे लॉगरिथम। सो log y इज इक्वल टू log a e रेस टू बी एक्स हो जाएगा। देन log ऑफ y इज इक्वल टू log a प्लस log e रेस टू बी एक्स। सो यहाँ पे log y इज इक्वल टू log a, अब बी एक्स आगे आ जाएगा एंड log e आ जाएगा। सो log y इज इक्वल टू log a प्लस b इंटू एक्स। log e तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बेस हमारा क्या है e है सभी में। यहाँ पे log नहीं है, क्या है ln है, ओके। तो यहाँ पे बेस e, यहाँ पर भी बेस e, ओके। अब ये मेरा एक्सप्रेशन हुआ, तो अब मुझे क्या क्या सपोज करना पड़ेगा,
सो इसको अगर फॉर्म में ले जाओ तो कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू कैपिटल X हुआ. सो मैंने क्या एज्यूम किया, लेट कैपिटल Y इज इक्वल टू लॉग Y बेस E, then capital A is equal to log A base E, then capital B is equal to small b, and capital X is equal to X. So this is the process to find the straight line, है ना. Y is equal to A plus BX को हमने क्या बना दिया, straight line है ना वो. तो अब इसके नॉर्मल इक्वेशन हमको पता है, अगेन कौन कौन से हो जाएंगे, अभी हमने लिखा था ना. सो नॉर्मल इक्वेशन होंगे yi is equal to a into n plus b into summation of xi, and summation of xi into yi is equal to a into summation of xi plus b into summation of xi square. So this is your number 1 and number 2 normal equations for the y is equal to a into e raised to bx. Is it okay? ऑनलाइन में अंडरस्टैंड सेम है कुछ. यस, सिर्फ यहाँ पे ई वाला नया आ गया. ओके, अब एग्जांपल देखते हैं. चलो, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लुक एट दी एग्जांपल. यस, फाइंड द लो ऑफ द फॉर्म. इसमें लो ऑफ द फॉर्म दिया होगा, हाँ, स्टेटमेंट में. y इज इक्वल टू, ये तो हो गया ना हमारे. यस, सेकंड में भी यही दिया है. यस, दिस इज द एग्जांपल. Find the law of the form y is equal to a b raised to x to the following data. अब डेटा कौन कौन से दिया है, x is equal to क्या है, and y. x and y मुझे दिया है. x मेरा है 0, 2, 4, 6 and 8, और यहाँ पे मेरा है 150, 63, 28, 12 and 5.6. ओके, तो यहां फिर से मैं कहां से स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन इसका. लेट, मुझे जिसके लिए फीड करने के लिए बोला है वो स्मॉल y इज इक्वल टू a b रेज टू x. सो अगेन दोनों साइड पे लॉगरिथम अप्लाई कर रहा हूं. सो log y इज इक्वल टू log a इंटू b रेज टू x. दैट इंप्लाइज log ऑफ y इज इक्वल टू, हाँ, सॉरी ई लेना था ना. यस, ई आएगा क्योंकि वो तो फर्स्ट वाला था, ई रेज टू बी एक्स, एंड यहाँ पर भी ई रेज टू बी एक्स आएगा. ओके, सो लॉग वाई, यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग ई रेज टू बी एक्स इम्प्लाइज लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, आगे चला जाएगा एंड लॉग ई आ जाएगा. सो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स, और इसका 1 हो जाएगा. ओके, डन. और इसके लिए अब हम क्या एज्यूम करने वाले थे, कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B इंटू कैपिटल X, वेर Y इज इक्वल टू लॉग Y, देन कैपिटल A इज इक्वल टू लॉग A, देन कैपिटल B इज इक्वल टू स्मॉल b, and capital X is equal to X. Is it okay everybody up to here? And the normal equations are, इसके लिए नॉर्मल इक्वेशंस हो जाएंगे समेशन ऑफ yi इज इक्वल टू a इंटू n प्लस b इंटू समेशन ऑफ xi, एंड समेशन ऑफ xi इंटू yi इज इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ xi plus b into summation of xi square. So say this is your 1 and this is your 2. So is there any doubt, any question up to here? Anybody offline में पीछे डाउट है? नो सर. ओके, ऑनलाइन में विजय ने तो बोल दिया नो सर. यस सर. यस सर. डाउट है या नहीं है वो बताओ. आप यस सर बोले तो डाउट है, ऐसा मीनिंग हुआ ना? नहीं सर. ओके, नहीं है. ओके, गुड. अब क्या करेंगे हम, जो जो हमको टेबल से वैल्यूज चाहिए वो निकालेंगे. तो यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ. तो टेबल का फर्स्ट होगा स्मॉल x स्मॉल y. ओके, देन कैपिटल X कैपिटल Y, देन
एक्स स्क्वायर चाहिए एंड एक्स इंटू वाई चाहिए। तो चलो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं। तो एक्स मुझे दिया था 0 2 4 6 8, ये मेरा एक्स है। उसके लिए वाई मेरा है 150 63 28 फिर 12 एंड फिर दिया है 5.6। तो कैपिटल एक्स क्या लेना है मेरा एजम्पशन में स्मॉल एक्स ही है। ओके, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो ये रिपीट हो जाएगा 0 2 4 6 एंड 8 बिकॉज कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। अब कैपिटल वाई क्या है लॉग वाई। ओके, एल एन वाई, तो एल एन वाई तो एल एन 150 कितना होगा एल एन 150 5.010. 5.0106 very good. ln 63 31 very good. ln 28 3322 है ना। then ln 12 2.484. 4849 very good. and ln 5.6 7228। एक्स स्क्वायर करते हैं तो एक्स का स्क्वायर तो बहुत इजी है 0 स्क्वायर 0 2 स्क्वायर 4 4 स्क्वायर 16 6 स्क्वायर 36 एंड 8 स्क्वायर 64। एक्स इंटू वाई करना है तो ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। 2 इंटू 4.1431 तो आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। एक एक ले लो आप सब लोग तो हो जाएगा। कोई सेकंड कर रहा है तो थर्ड कोई दूसरा करो, फोर्थ कोई, तो सभी फटाफट हमारा टेबल प्रिपेयर हो जाए। चलो 4.1431 मल्टीप्लाई बाई 2 किया किसी ने? ओके चलो आप आपकी नोटबुक में लिख दो, बाद में मुझे लिखवा दो। ऑनलाइन में क्या लग रहा है 4.1431 इंटू 8.2862 वेरी गुड। देन 3.3322 इंटू 4 3288 वेरी गुड। 2.4849 मल्टीप्लाई बाई 6 14.9094. 14.9094 I am happy very good. Then 1.7228 multiplied by 8 very good 13.7824 very good। चल अब मुझे क्या करना है समेशन ऑफ एक्स आई समेशन ऑफ वाई आई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स वाई। चलो ऑनलाइन में जितने भी गर्ल है वो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। ऑनलाइन में जितने भी बॉयज हैं वो समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई करेंगे। ऑफलाइन में जितने भी गर्ल है वो समेशन ऑफ वाई आई करेंगे एंड बॉयज समेशन ऑफ एक्स आई करेंगे। चलो जल्दी चलो, गर्ल का आ गया समेशन ऑफ वाई आई। ऑनलाइन में करना है प्लीज, है ना, आप करो तो भी पता चलेगा कि कैसे करना है। चलो एक्स आई मिला, ये तो इजी है, चलो मैं कर देता हूँ। 8 + 6 14 14 + 4 18 18 + 2 20। चलो ये तो मेरा हो गया। मेरे पास तो सभी आंसर है लेकिन आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। सारे मिल गए? चलो बताओ समेशन ऑफ वाई आई बताओ। गलत है, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 16.6936 वेरी गुड, सही है, इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना है। चलो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर
120, वेरी गुड. समेशन ऑफ xi yi 50.3068. 68, वेरी गुड. ऑनलाइन वाले बॉयज, यस वेरी गुड. 50.3868, वेरी गुड. चलो, तो हमारा टेबल प्रिपेयर हो गया है. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलो बताओ, कौन बताएगा. नेक्स्ट स्टेप बोलो, क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में. वैल्यू इक्वेशन यस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा दिया है, नॉर्मल इक्वेशन को, यस 1 and 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो क्या होगा, समेशन ऑफ yi, समेशन ऑफ yi मींस 16.6936 इक्वल टू a इंटू एन. तो a तो मुझे एज इट इज रखना है. n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने ऑब्जर्वेशन, कितने हैं, 5 5, यस. प्लस b इंटू समेशन ऑफ xi मींस 20, सो यहाँ पे 20 हो गया. फिर समेशन ऑफ xi yi, तो ये हो रहा है 50.3068 इक्वल टू a इंटू xi मींस 20 प्लस b इंटू xi स्क्वायर, सो 120. अब इसको अच्छी तरीके से लिख देते हैं. सो यहाँ पे मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ गए. देयरफॉर 16.6936 इज इक्वल टू 5 इंटू ए प्लस 20 इंटू बी, देन 50.3068 इक्वल टू 20 इंटू ए प्लस 120 बी. Okay, so this is your equation number 3 and equation number 4. So solving 3 and equation 4 we get, चलो कैपिटल A एंड कैपिटल B की वैल्यू बताना है आपको. फोर 4117. Okay, very good, verified. This one is verified by the offline student. ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ करो यार, ए की वैल्यू लेके आओ. चलो आपको ए मिल गया. हाँ, तब से आप लोग कुछ कर तो रहे ही है. चलो कैपिटल ए मिल जाता है तो हम आगे बढ़े. आ गया, क्या आया, 4.9855. ओके, ये भी वेरीफाइड. चलो a इज इक्वल टू मिल गया, b इज इक्वल टू मिल गया. हियर चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. एवरीबॉडी लुक एट हियर. हियर अब a की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, मैंने क्या एज्यूम किया था, कैपिटल ए log small a, है ना. सो log small a base e, that means ln, is equal to 4.9855. that implies a is equal to e raised to 4.9855. चलो इसकी वैल्यू बता दो. स्मॉल a की 1.146.28. ओके, 146.28, वेरी गुड. एंड सेकंड वन बी. बी के लिए तो क्या लिया था हमने, बी स्मॉल बी सीधा ही था, है ना. एंड स्मॉल बी इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा -0.4117. तो मेरा ए भी मिल गया, बी भी मिल गया. तो अब मुझे क्या करना बाकी बचा, द रिक्वायर्ड
cos y is equal to a e raised to bx is क्या हो जाएगा, y is equal to a means 146.28 e raised to minus 0.4117 into x as per given data. ओके, ये डेटा चेंज करता हूं तो मेरा कर्व भी चेंज हो जाएगा. ओके, so is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. ऑफलाइन में नहीं है ना? ओके, इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर? ऑनलाइन में नहीं सर. ओके, ये क्लास में हमने दो कर्व का फिटिंग पढ़ा है ना. नंबर 1 y इज इक्वल टू a b raised to x and second one is y is equal to a e raised to bx. In next class we discuss the x into y raised to gamma is equal to c. Okay, so good day, take care everybody.